देखो, आर प्रिपरेशन वुड हैपन इन 3 फेजेस। सबसे पहले अप्रैल टू दिसंबर हम फाउंडेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। क्यों लुकिंग एट करंट अफेयर्स, आपका ऑप्शनल लेट्स से पीएसआईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, डू वैल्यू एडिशन एंड राइट पीवाईक्यूज। एक बच्चा है तरुण यादव, तरुण यादव इज ऑल इंडिया रैंक 49। उसने पूरी ही वाज एनरोल्ड इन माय करंट अफेयर्स प्रोग्राम। आप अगर वो पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट 15 मंथ की आपकी प्लानिंग हम करके देंगे। हम बताएंगे कैसे करना है। अब आते हैं कैसे करें प्रिपरेशन। तो देखो, मैं दोनों ऑप्शंस बता रहा हूं आपको। यू कैन जॉइन अ कोचिंग एंड यू कैन प्रिपेयर विद देम, और यू कैन स्टडी एट योर ओन। 2027 एग्जाम अप्रैल 2026 से हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन फ्रॉम 18 अप्रैल 2026, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू? देखो, आर प्रिपरेशन वुड हैपन इन 3 फेजेस। सबसे पहले अप्रैल टू दिसंबर, द फर्स्ट फेज। इन फर्स्ट फेज, what we need to do is we need to divide our week into 2 halves. पहले Monday to Friday. In these 5 days, I expect you to study for 25 hours, roughly 5 hours daily. और यहां पे ना हम ऑप्शनल नहीं करेंगे, यहां पे we will focus on GS and essay. We'll start with GS, essay तो थोड़ा बाद में आता है when our command on GS subjects are good. Every day study for 3 to 4 hours. आप कॉलेज के बाद या ऑफिस के बाद इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। स्टडी फॉर 3 to 4 hours एंड डू रिविजन फॉर 1 hour। रिविजन फॉर व्हाट यू डिड ऑन दैट डे, प्लस इफ टाइम permits the older things, so that when we have a lot of workload, we miss revision, and that is a very disastrous thing to do. Without revisions you will not clear this exam. चाहे दुनिया का सबसे हार्ड वर्किंग पर्सन आ जाए और वो कंसिस्टेंटली शुरू से आखिरी तक बस पढ़ता जाए, वो आफ्टर 6 months he would forget what he had studied 6 months back. And that is why a consistent plan of revision should be there. Every day 1 hour should be spent on revision. So study for 3 to 4 hours. You may be watching some classes. Please watch the class, revise those notes, and then for 1 hour revise the whole thing again. If you can revise whatever you did today in less than 1 hour, then pick up previous days or usse bhi pehle wala section and keep on revising from Monday to Friday. This is what you need to do. GS की preparation we will do from Monday to Friday with revisions systematically. This is for 9 months, from April to December, April 2026 to December 2026, these 9 months. Then on Saturdays and Sundays, I expect you to study for 18 to 20 hours in total, not on one day 18 to 20 hours. वो सब फर्जी स्टोरीज होती है। Ideally 8 to 10 hours of study every day, like 10 hours would be a good number. So 10 hours on Saturday and 10 hours on Sunday. It can take you to 20 hours of preparation. Let us give this time for optional. Generally in optional classes what happens, there are 5 classes every week of 2 to 2.5 hours. So 5 classes into 2.5 hours roughly will take you to 12.5 hours. Generally 2 to 2.5 hour होता है, तो I should write it 10 to 12.5 hours का you may have classes for 6 months. We are giving 9 months for optional. For 6 months you will have 10 to 12.5 hours of classes. First thing is spend 20 hours on or 12 hours on those classes. Other than that, spend 3 hours on revision. जो आपने जो भी पढ़ा है उन classes में, please revise. If you start early, if you start in April, what would happen? You will be able to finish your optional faster and you will have a lot of time for revision. If you start in June, July, August, आप ना आखिरी तक बस classes करते रह जाओगे. Optional की classes roughly goes on for 6 months. Every week you have around 5 classes, and if you sit on Saturday, finish those 5 classes, next day revise it, or if you sit on Saturday and finish let's say 4 class, Sunday को भी एक class कर ली, फिर 3 hours of revision, optional is sorted. In this phase you may also write some PYQs and do all that. फिर before starting Monday, spend another 3 to 4 hours in revising your GS question. This also has to be revised on Sundays. Many generally I've seen students following this approach, and in this approach you may switch this, like
You may do optionals here and you may do optionals here and GS here. This can be switched, but roughly plan would remain the same. Around 25 hours of studies from Monday to Friday, and around 20 hours of studies on Saturday and Sunday. This is something that we have to do. Sanjay is asking कि is it possible to prepare while doing MBA? देखो यार, MBA का जो वर्कलोड होता है ना, वो डिपेंड करेगा. जैसे आई नो, मेरे कुछ दोस्त IIM अहमदाबाद में पढ़ रहे थे. देयर फर्स्ट ईयर वाज too hectic to do anything else. It was not possible, but the second year was chill. So you'll have to take a call on how much time you have. If you can spare, my point is simple. If you can spare 4 hours every day for your preparation and more time on Saturdays and Sunday, you can prepare with anything. You can prepare with MBA, you can prepare with BTech, you can prepare with job. If you cannot stake out 4 hours every day, तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा. देन यू गो फॉर अ 2-year plan. We'll talk about the 2-year plan also. Sir, working 6 days a week, hard to take out 18 hours on weekend. Beta, in this case, agar if you're working for 6 days a week, try to ensure that on normal days only, here rather than having 25 hours, you're able to 6 days में 6 into 6, like you're studying for 6 hours every day, and यहाँ पे फिर 8-10 घंटे every day. देखो, in total we're studying for 45 hours. In total we're studying for 45 hours in the week. 25 hours here and 25 hours from Monday to Friday, and then 20 hours on Saturday Sunday. अब आप थोड़ा प्लान कर लो कि ये 40 to 45 hours का स्टडी है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली दिस. इट कैन बी स्लाइटली डिफरेंट. बैकलॉग्स, विल टॉक अबाउट दैट. तो चलो, ये चीज समझ में आई है. ये फर्स्ट फेज है, वेयर यू आर गोइंग थ्रू स्टैंडर्ड बुक्स, वेयर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड you are systematically preparing for these 9 months. 9 months foundational preparation के लिए is needed. Then would come the second phase of our preparation. In second phase, we focus primarily on, ये third phase नहीं, I have to go on the second phase. In second phase, we have to focus primarily on preliminary examination. देखो, अभी in the first 9 months, we did not focus a lot on CSAT also. अब हम वो करना शुरू करें. Now, in the first phase, did we not focus on prelims? नहीं, we focused on prelims also. हम foundational preparation कर रहे हैं, तो prelims और mains दोनों की तैयारी कर रहे हैं. But now we will, from January, because we are working, we have limited time, we will completely dedicate ourselves for prelims preparation. यहाँ पे भी वही करेंगे. Monday to Friday, around 25 hours, we will be focusing on revising only for prelims examination, and on the weekends, we'll try to again do some revisions, PYQ practice, and attempting tests. फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे. एवरी संडे विल ट्राई टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन टेस्ट. ऑन नॉर्मल डेज विल अटेम्प्ट PYQs, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what are the type of questions UPSC ask, and we will link it with the subject that we have studied. किस पोर्शन को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, we will look at that, and on other days we will on the weekends we will try to attempt a test also. Plus, if you are not good at CSAT, if you come from a background जहाँ पे aptitude, educational background जहाँ पे aptitude पे बहुत focus नहीं रहा है, if that's a cause of worry, please ensure कि weekend में एक दिन 5-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, depending on at what level of preparation you are giving to CSAT. But as a working aspirant, start focusing on CSAT only from January. Try to ensure that between April to December, you are able to finish all your targets, and after that you jump on to your if from April to December you are able to finish all your targets, you are able to have notes for most of the subjects, and only then in this phase, in which phase, in January wala phase, January to April second phase, you will be able to with focus prepare for preliminary examination. By December also you have done preparation for both preliminary and mains examination, so you understand basic sources, you understand कि कैसे रिवाइज करना है. यहाँ पे we will do revision and value addition. Then would come the third phase. Third phase में generally मैंने ये देखा है, even working aspirants they take a sabbatical. जो बच्चे कॉलेज में है उनका ग्रेजुएशन हो चुका होगा, वो 2-3 महीने का ब्रेक लेंगे. If you are clearing preliminary examination, I would want you people to take a break for 2-3 months and study full time. In fact, this is the period between prelims and mains जो time होता है, this is the period where you will perhaps work the hardest that you have done in your life. This is the period where
आप मेडिकल लीव अप्लाई करो, कुछ भी करो, भाग के जैसे भी आना है, आप 2-3 महीने के लिए हमारे पास आओ, हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे नहीं ज्यादा, मोर ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ। तो हियर मंडे टू फ्राइडे you will spend half of the day on your optional subject to revise your optional subject, do any value addition. If you are looking at PYQs and you're seeing कि यार कुछ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या if you're looking at current affairs, आपका optional let's say PSI आ रहा है, international relation में बहुत development हो रही है, do value addition and write PYQs. This has to be done every day. 4 to 5 hours every day you'll spend on optional, and 4 to 5 hours every day you'll spend on GS and essay. Again, first thing you'll do is revision, because you have already prepared for it. आपका मेंस का प्रिपरेशन दिसंबर तक भी हुआ था, आपने वो प्रिपरेशन किया है. डू एनी वैल्यू एडिशन इफ इट्स रिक्वायर्ड एंड राइट पीवाईक्यूज एवरी डे मंडे टू फ्राइडे. यू विल राइट बोथ ऑप्शनल पीवाईक्यूज एज वेल एज जीएस पीवाईक्यूज. पहली चीज ये. सैटरडे को हम रखेंगे रिवीजन के लिए, बिकॉज संडेज को वी आर गोइंग टू राइट टेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट वी स्टडीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. उसका टेस्ट अपन संडे को करेंगे. संडे को वी आर गोइंग टू राइट 2 टेस्ट, वन जीएस या एसए टेस्ट एंड दूसरा ऑप्शनल का टेस्ट. Between pre and mains, every Sunday, one GS of essay test, one optional का test, every Sunday will have to write. और फिर यहाँ पे break, because this is a very rigorous schedule. Please ensure that Sunday को 5 बजे के बाद you'll also be taking a break of 4-5 hours where you will not be studying, so that Monday को you can come back with full rigor. तो third phase में, even for working aspirants, I expect you to take a break. मुझे रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई चाहिए होगी प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में. आप right after mains you can go become invisible and go back to your job, go back to whatever you were doing, and वहां पे पूरे रिगर के साथ लग जाओ. बट प्रिलिम्स और मेंस के बीच का जो फेज होगा, वहां पे प्लीज अंडरस्टैंड, पहले से प्लान करो. आफ्टर क्लियरिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यू विल टेक अ ब्रेक. प्रेफरेबली यू विल कम टू दिल्ली, बिकॉज आंसर राइटिंग करना, टेस्ट इवैल्यूएट करवाना, वो सारी चीजें जब ऑफलाइन होती हैं, इट इज मोर इफेक्टिव. तो these are the 3 phases in which we will need to study. तो कमिंग बैक टू, मुझे अप्रैल से दिसंबर तक अपना फाउंडेशनल प्रिपरेशन करना है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का. जनवरी से अप्रैल में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना, जनवरी टू मई में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, एंड जून जुलाई अगस्त आई हैव टू डेडिकेट कंप्लीटली फॉर मेंस. एंड जून जुलाई अगस्त, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट अटेंडिंग कॉलेज, आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये 3 मंथ्स में सब कुछ साइडलाइन करके बस क्या करूंगा, तैयारी करूंगा मेंस की तैयारी. बिकॉज मेंस की प्रिपरेशन, आई नो वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस टिल दिसंबर ऑल्सो, बट उस टाइम वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, वी हैव टू डू सम वैल्यू एडिशन, एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली. आई होप ऑल ऑफ अस हैव क्लैरिटी ऑन दिस कि 3 फेजेस में कैसे प्रिपरेशन होगी. अब आते हैं कैसे करें प्रिपरेशन. तो देखो, मैं दोनों ऑप्शंस बता रहा हूं आपको. यू कैन जॉइन अ कोचिंग एंड यू कैन प्रिपेयर विद देम, और यू कैन स्टडी एट योर ओन. तो मैं ऑप्शन 1 में कोचिंग की बात करूंगा. ऑप्शन 2 में आई विल टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी, हाउ यू कैन डू सेल्फ स्टडी. विल लुक एट बोथ द थिंग्स, है ना. सबसे पहले ऑप्शन 1 में कोचिंग, जैसे वी एट लेवल अप आईएएस, we run GS foundation course, we run optional course. Our GS foundation course is one of the best out there. Optional में in a few optionals, जैसे आप अगर एंथ्रोपोलॉजी देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी में शायद इंडिया में ऑलमोस्ट 95% सिलेक्शंस जो हुए हैं वो लेवल अप आईएएस से हुए हैं. मैं शायद एक आध बच्चे को जानता हूं जो लेवल अप आईएएस में ऑफिशियली एनरोल नहीं था और उसका एंथ्रोपोलॉजी में सिलेक्शन हुआ. अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में तो शायद ऑलमोस्ट सारे सिलेक्शंस लेवल अप आईएएस से ही है. ऐसे हिस्ट्री में I so far know 4 students who are in top 100. All 4 of them are from level up IAS. PSIR also, हमने PSIR भी recently शुरू किया है, but PSIR में this year we have some amazing results. तो इन सब के फाउंडेशनल कोर्सेस हैं जो अप्रैल में या जून में स्टार्ट हो रहे हैं. You can take them, and then our GS foundation course is also starting in April. Another one will start in May. Then some in June, July also. You may consider any one of them, but because you are working, because मेरा recommendation रहेगा, try to begin as soon as possible. If you do that, तो ना फिर you do not have to make plans कि यार किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. We will make it for you. आपकी क्लास का शेड्यूल रहेगा, आप उसके हिसाब से पढ़ोगे. संडे को उस हिसाब से टेस्ट होंगे. यू मे टेक अ कॉल कि मैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई एम गोइंग टू डू ऑप्शनल ओनली. यू डू ऑप्शनल.
फ्राइडे रात से या सैटरडे मॉर्निंग से आप मंडे से फ्राइडे तक जितनी भी जीएस की क्लासेस हुई है वो करिए, संडे को टेस्ट दीजिए, रिवाइज करके टेस्ट दीजिए और फिर संडे को दोबारा से थोड़ा सा ऑप्शनल रिवाइज करिए, द प्लान दैट वी हैव सजेस्टेड। तो इफ यू study GS foundation with us, if you study optional with us, then we will make a plan for you. We will guide you throughout, we will tell you what study material to cover, notes में कौन सी चीज कहां से पढ़नी है वो, तो उसका ज्यादा टेंशन नहीं है। If you want to not go for, देखो I have many students जिन्होंने सेल्फ स्टडी से तैयारी करी है। इस बार एक बच्चा है तरुण यादव, तरुण यादव इज ऑल इंडिया रैंक 49। उसने पूरी ही वाज एनरोल्ड इन माय करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बट अदरवाइज उसने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से करी है। तो दैट्स आल्सो अ मेथड ऑफ डूइंग इट। But Tarun is very, very, very disciplined, very hardworking, very smart, and he had that confidence कि he'll be able to do it with self study. उसको किसी ने सजेस्ट किया कि सेल्फ स्टडी से कर तो रहा है, बट संतोष सर के साथ करंट अफेयर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर ले। तो वो 24 में भी, और लास्ट ईयर ही हैड बिकम आईपीएस ऑफिसर, दिस ईयर ही विल बी जॉइनिंग आईएएस। वो दोनों टाइम करंट अफेयर्स प्रोग्राम में एनरोल था। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो सेल्फ स्टडी से भी तैयारी होती है, बट सेल्फ स्टडी से ना तैयारी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इफ यू वांट टू डेलीगेट योर प्लानिंग, डेलीगेट योर वर्क की, यार मेरे लिए कोई ये सारी चीजें कर दे, मुझे बस बता दे रोज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी क्लासेस देखनी है, कौन सा टेस्ट देना है, एंड आई विल डू इट, आई विल डू ऑल ऑफ दैट, देन यू कैन ऑलवेज कम टू अस। जब हम जीएस फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं, हम आपको यहां नहीं लेना हो, कहीं और लेना हो लो, बट ऑलवेज गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द टीचर्स। जैसे मैं बोलूंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये 6 कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब के वीडियोस बाकी सारे इंस्टीट्यूशन के भी देखो, लेवल अप आईएएस के भी देखो, यू विल योरसेल्फ सी दैट लेवल अप आईएएस पे टीचिंग क्वालिटी इज वे बेटर देन मोस्ट अदर प्लेसेस। आप हिस्ट्री में निखिल सर के वीडियोस देखिएगा, पॉलिटी में बाबू सर के वीडियोस देखिए। बाबू सर हैज क्लियर्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थ्राइस। आई विल बी टीचिंग यू जीएस3, जिसमें साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। तो माय नेम इज संतोष कुमार, मैं मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, यू कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। तो बट आप अगर वो पढ़ेंगे, आप हमारे साथ पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट 15 मंथ की आपकी प्लानिंग हम करके देंगे। हम बताएंगे कैसे करना है, एक वर्किंग एस्पिरेंट को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वी विल बी डूइंग दैट। बट लेट्स कम टू ये वाला फेज कि हाँ, लेट्स कम टू ये वाला फेज कि आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, नॉट विद सम कोचिंग एंड ऑल। तो देखो, सबसे पहले इफ यू आर स्टडीइंग फ्रॉम विद सेल्फ स्टडी ना, तो पहले आपको अपने फंडामेंटल्स, आपको अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना होगा। अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम स्क्रैच से आपको तैयार करके एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। पर सबसे पहले आई वुड आस्क यू टू स्पेंड 2 मंथ्स इन स्टडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्या एनसीईआरटीज। गो थ्रू देम, नॉट फॉर साइंस एनवायरनमेंट, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटीज पर। ओल्ड वाली, न्यू वाली, एकदम नई वाली, एकदम न्यू वाली तो आई नहीं अभी, और नई एनसीईआरटीज आ रही हैं, बट ओल्ड या न्यू में से कोई भी उठा के क्लास 6 टू क्लास 12 वाली एनसीईआरटीज पढ़ो। और पढ़ो इन द सेंस, ट्राई टू इंश्योर दैट, डू नॉट ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग, बट ट्राई टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर वी जंप ऑन टू स्टैंडर्ड बुक्स। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद ना आपको जो यूपीएससी प्रिपरेशन की स्टैंडर्ड बुक है उसके साथ जाना है। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत प्लस एससीएम का मतलब है कोई कोचिंग, सम कोचिंग मटेरियल। कोचिंग मटेरियल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर डिजाइन्ड फॉर द एग्जाम। तो सम कोचिंग मटेरियल बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो लक्ष्मीकांत प्लस किसी एक इंस्टीट्यूशन का कोचिंग मटेरियल बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। पॉलिटी बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, तो सबके मटेरियल सिमिलर से होते हैं, ज्यादा चैलेंजेस नहीं रहेंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके स्टैंडर्ड सोर्स में एनसीईआरटी आएगा, एंड देन कोचिंग मटेरियल मैं आपको रिकमेंड करूंगा निखिल सर के नोट्स, अगर आपको वो मिल पाते हैं, स्टडी फ्रॉम देयर। तो NCERTs plus Nikhil sir ke notes would be good enough. But if you're watching his classes also, then you don't even need NCERTs. He would ensure that everything is systematically properly covered. ऐसे ही when we talk about geography, NCERT 11th and 12th की और किसी एक कोचिंग मटेरियल, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स प्रीलिम्स के लिए अलग एंड मेंस के लिए, ये आपको करना होगा। फिर व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, फॉर प्रीलिम्स यू कैन वॉच लेवल अप के यूट्यूब वीडियोस। हमने उसमें पूरी इकोनॉमी, पूरा साइंस, पूरा एनवायरनमेंट अलग अलग सालों में कराया है। वो आप एक बार पूरा कर लीजिए, फंडामेंटल्स पूरे हो जाएंगे। एंड देन
फॉर मेंस अगेन GS3 के लिए सबसे अच्छा मटेरियल लेवल अप का ही होता है, और GS3 के लिए बहुत स्टैंडर्ड सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमने मेंस का मटेरियल पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में in our MMP program, in our GS Foundation program, we do it. You take that after finishing the fundamentals, you finish this aspect also. When it comes to ethics, GS paper 4, cover it with some good teacher, some established teacher. जैसे ऐसे essay में if you are not comfortable, there are like some of you may be very comfortable with essay. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, मिरांडा हाउस में पढ़ रहे होंगे, PSI ऑप्शनल होगा, एंड thus you can write very good essays, but if you are not very comfortable with that, या हमारे यहाँ SN चक्रवर्ती सर है, he is the most experienced teacher with us, and he teaches essay here at Level Up IAS. he is also very good. तो किसी एक को लेके आप अपने पेस पे अपने मेथड से करते रहिए. when I say self study, it doesn't mean that you will have to reinvent the wheel. जो चीज हमने 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो नोट्स बनाए हैं, जो चीज करिए, उसको आप यूज करिए. यू डोंट जॉइन अ कोचिंग, फाइंड दिस मटेरियल एंड यूज देम एट योर ओन पेस, इन योर ओन वे टू प्रिपेयर. if you again, I'm repeating this, कि if you are someone who is joining the coaching, let's say you come and join GS Foundation course plus optional course at Level Up IAS, we will plan everything for you. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए कब पढ़ना है, मेंस के लिए कब पढ़ना है, इन दीज 9 months, पहले फाउंडेशन कैसे, बेसिक्स कैसे कवर होंगे, हम एडवांस लेवल पे कैसे जाएंगे, आंसर राइटिंग कब करनी है, संडे को टेस्ट कैसे होंगे, all that will be our responsibility, but it is not necessary. You can also do it by self study. हमारे बहुत सारे बच्चे, मैं आपको नाम बता रहा था उन बच्चों का जिन्होंने वर्किंग थे, उन्होंने वर्किंग थे या कॉलेज में थे, उन्होंने तब क्लियर किया है. एक मैंने आपको बताया यथार्थ दीक्षित की बात करी, ही इज आई थिंक IRS ऑफिसर. कुमार गौरव की बात करी थी, ही इज एन IAS ऑफिसर. शुभम नोखवाल एक बच्चा है, वो कॉलेज में था, कॉलेज के साथ वो हमसे पढ़ता रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में वो हमारे साथ पढ़ रहा था, एंड राइट आफ्टर कॉलेज व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, ही बिकेम एन IAS देयर ओनली. तो शुभम नोखवाल इज अनदर स्टूडेंट. ये सारे मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग एस्पिरेंट थे या कॉलेज में थे, उसके साथ तैयारी करके प्रिपेयर करे हैं. तो बट दे वर ऑल पार्ट ऑफ आवर कोचिंग आल्सो. बट देन आई एम गिविंग यू नेम ऑफ स्टूडेंट. जैसे तरुण ने सिर्फ एक कोचिंग, ऑल इंडिया रैंक 49 ऑफ दिस ईयर, ही हैज जस्ट जॉइंड अस फॉर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, दैट्स इट. इसके अलावा उसने कुछ कहीं से नहीं पढ़ा था, सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया था. तो सेल्फ स्टडी से भी होता है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट. You can decide what do you want to do. You want to delegate your work on some coaching and on some mentors and work with them, or you can take a call on systematically finishing everything. In case आपके कोई और भी डाउट्स हैं, कुछ और भी कंसर्न्स हैं, आप मेंटर से बात करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, you can always give us a call on this number